آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کائنڈلی اپنے ہاتھ ویو کر کے مجھے بتا دیں کہ اگر میری آواز کلیئر آ رہی ہے. جی تھینک یو انیل بھائی. گاڈ بلیس یو. میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ مجھ سے ناچیز ادنا خاک اور راکھ شخص کے ذریعے سے آپ لوگوں کے درمیان آج کلام کی خدمت ممکن کرائی. میں اپنی پیاری بیٹی نیہا ولسن کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اپروچ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں اگر سیٹرڈے کو کلام سنا سکوں اس پلیٹ فارم سے. تو خداوند اس بیٹی کو بھی بہت برکت دے. پاسٹر ولسن یونس صاحب جو اس چرچ اور اس خدمت کو چلا رہے ہیں، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی ساری فیملی کا اور آپ سب لوگوں کا جنہوں نے وقت نکالا اور یہاں پر خدا کے کلام کی خدمت کے لیے موجود ہوئے. ضروری نہیں کہ جب ہم کلام سنائیں یا لیڈ کریں یا دعا کریں یا پرستش کریں تو ہی ہم کلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کلام سن رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا وقت خدا کی حضوری میں قیمتی طور سے گزار رہے ہوتے ہیں، پیش کر رہے ہوتے ہیں، وقت کا دیا نذرانہ خدا کو دے رہے ہوتے ہیں. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بڑے عجیب طور سے خدا کے پاک روح نے یہ ممکن کیا اور کس طرح آج کی پرستش بھی ساری روح القدس کے وسیلہ سے اسی میسج، اسی پیغام کے ساتھ سنکرنائزڈ ہے کہ بھائی حماد بیلی نے آج جو تینوں پرستش کے گیت گائے، یہ سارا کا سارا روح القدس کے وسیلے سے ممکن ہے کہ آج میں اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کلام سے بھر کر زندگی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور کلام کا مطالعہ کرنا اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، بڑی خوبصورتی سے کرنتھیوں 13 باب کو بھائی حماد بیلی نے پرستش کے وسیلہ سے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا اور ہم اس کو جانتے ہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں بھائی حماد بیلی کی گواہی کے لیے بھی، جو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کس طرح خدا سے دور تھے لیکن اب یہ وقت ہے کہ وہ لنڈن میں ہاؤنسلو کے گرد و نواح کے ایریا میں اور ایچ ویئر میں کس طرح خدا کا کلام لے کر جا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. اور یہی خدا ہم سے چاہتا ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں تو ہماری خدمت کہاں ہے. اور یہی آج کا ٹاپک ہے. میرے سامنے کچھ حوالے ہیں، یہ میں نے چند چیزیں لکھ لی تھیں کہ تاکہ مجھے یاد رہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں سنکرونائزڈ ہو رہی تھیں تو میں ساتھ ساتھ پھر لکھ رہا تھا کہ واقعی یہ تو خدا کے روح کی مرضی سے ہے. میرے پاس کچھ حوالے ہیں اور ایز یوزول حسب عادت میں بہت سے حوالے صرف آپ کو ریفرنسز بتاتا جاؤں گا اور وقت کی بچت کرنے کے لیے مجھے 30 سے 40 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس ٹائم کو ایکسیڈ نہ کروں، لیکن آئی بلیو کہ آپ کو آج خدا کا روح برکت دے گا. تو میں محض 2 حوالوں کا یہاں ورد کروں گا. ایک حوالہ میں آدھا پڑھوں گا اور دوسرا حوالہ تقریباً پورا پڑھوں گا. پہلا حوالہ پرانے عہد نامے میں سے ہے، آپ بے شک اس کو مارک کر سکتے ہیں، اور دوسرا حوالہ نئے عہد نامہ میں سے. اور خدا کا روح جو آج ہمیں جس ٹاپک پہ سکھانا چاہ رہا ہے، بینگ مسیحی، بینگ خدا کے خادم، بینگ ایماندار ہوتے ہوئے، مسیحی ہوتے ہوئے اور کسی طرح بھی خدمت کرتے ہوئے، جو خدا کا روح ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے وہ ہے دلیری کا روح. دلیری کا روح، the spirit of boldness، یہ آج خدا کا روح ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. پہلا حوالہ امثال 29 باب 29 چیپٹر اور اس کی 25 آیت کے اندر خدا کا کلام. اس کا بس میں پہلا ہی حصہ پڑھوں گا، انف ہوگا. انسان کا ڈر ٹھنڈا ہے. اگر آپ میرے پیچھے یہ کلام کو بول سکتے ہیں تو میرے پیچھے بولیں، اپنے مائک میوٹ ہی رہنے دیں لیکن ضرور بولیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا سیکھنے والے ہیں. اور خدا کا روح القدس یہاں موجود ہے جو زمان و مکان کی قیود سے بالکل بالا تر ہے. وہ زمانے یا وقت کی جہت میں نہیں رہتا، سارے زمانے اس کے ہیں. وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. وہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ یورپ میں ہیں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، افریقہ میں ہیں، wherever you are right now، روح القدس کے لیے پابندیاں نہیں ہیں. پابندیاں ہمارے لیے ہیں، لیکن جب ہم روح کے
बहाव में बहते हैं तो हम उन पाबंदियों से आजाद हो जाते हैं। और अब दुनिया की मुख्तलिफ जगहों से हम लोग इकट्ठे हैं, तो रूल कुछ हमें क्या सिखा रहा है? मेरे साथ सिर्फ इतना हिस्सा बोले, इंसान का डर फंदा है। इंसान का डर फंदा है। आमीन। तो ये पहला वाला। और दूसरा वाला, दूसरा तिमुथियुस, पौलुस रसूल का तिमुथियुस के नाम दूसरा खत और उसके पहले बाब की 7वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत ठहरे। आइए एक थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें, हम खुदा के रूह को वेलकम कहें। हमारे नहायती मेहरबान बुजुर्ग जलाली वफादार ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, आदा सराई, हम्द और जय जयकार करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि आज के इस पैगाम के वसीला से तेरे बेटे यस्सु का नाम जलाल पाए। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि आज ईमानदारों की जो अक्सरियत है, ज्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो ईमान को बयान करने वाले हों या वो ईमानदारों की टोली का हिस्सा हों, ईमानदारों के मजमा में जाने वाले, शामिल होने वाले हों, लेकिन ज्यादातर अक्सरियत ईमानदारों के अंदर हम देखते हैं कि उनके अंदर डर, खौफ, एहसास कमतरी, रुकावटें और अजीब तरह के झंझट उनके चौगिर्द होते हैं। और खौफ के बायस वो ना तो खुदा की खिदमत सही तरह कर सकते हैं और ना ही कभी अपने आप को खुदा के अहल बनाने की कभी वो कोशिश करते हैं। बहुत मर्तबा शकूक, बेअख्तियार, अनजाने खौफ अंदर से उठते हैं जो हमारे ईमान की राह में ना सिर्फ हायल होते हैं बल्कि नाउम्मीदी और बेइत्कादी की सरगोशियां हमारे अंदर पैदा करते हैं। लेकिन खुदा का रूह इन खौफ, डर और इन तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए हमें तकवीयत देता है। और खुदा का रूह जो है वो दलेरी का रूह है। हमारे अंदर हमें जरूरत खुदा के रूह से मामूर होने की। खुदा हमें बेइत्कादी, पाबंदियों और महदूद करने वाली रुकावटों से बाहर लाकर हमारी हदूद को और खिदमत को वुसअत देना चाहता है, हमारे ईमान को वुसअत देना चाहता है। वो हमें महज ईमान की गवाही के लिए चंद लोगों तक या अपनी फैमिली तक या अपने इलाके तक नहीं महदूद रखना चाहता, उसने हमें दुनिया की इंतहा तक के लिए चुना। और ये आप लोगों के लिए कलाम है, ये हर एक ईमानदार के लिए कलाम है, क्योंकि ये कलाम खुदा के मुंह से निकला हुआ उसका कलाम है, ये हमारा कलाम नहीं है। कलाम के अंदर अगर इमाल के अंदर हम देखते हैं उसके पहले बाब की 8वीं आयत के अंदर, तो वहां पर खुदा यीशु मसीह ने ये खुद कहा है कि तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। इसलिए अपने आप को उस दायरा, हदूद के दायरे से बाहर निकालें, अप्रोच करें। बहुत बड़ी फील्ड, एक बहुत बड़ी दुश्मन की सल्तनत आपके सामने है जहां तक आपने पहुंचना और कलाम सुनाना। खुदा हमें, आज हम पुराने अहदनामे के दौर में नहीं रह रहे, आज हम फजल के दौर में रह रहे हैं जहां रूहुल कुद्स है, जहां बेतहाशा मसा है। एक वक्त था जब दाऊद कहता था तू मेरा प्याला लबरेज करता है, लेकिन आज यीशु मसीह कहता है प्याला नहीं, बर्तन नहीं, मैं जो पानी तुम्हें दूंगा वो तुम्हारा प्याला लबरेज नहीं करेगा, तुम्हारे अंदर से नदियां जारी कर देगा जो दूसरों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। ये दौर है रूहुल कुद्स के बहाव में बहने का। थोड़ी चीजें, छोटी बरकत, छोटे मौजूदात नहीं, बड़ी कुदरत को मांगने का ये वक्त। आज हम उस दौर में नहीं रह रहे जब अलीशा ने एलिया से कहा था कि मुझे तेरे रूह का दूना मसना चाहिए। आज हम रूहुल कुद्स के दौर में रह रहे हैं जिसका मसा बेतहाशा है। वो 2 गुना या 4 गुना या 10 गुना नहीं, ना ही वो नाप कर और तोल कर देता है। वो जिसको चाहता है बेतहाशा दे देता है। और ये मसा सब ईमानदारों के लिए है।
اب میں آپ کو ایک حوالہ بتانا چاہتا ہوں قضات کی کتاب میں، آپ اس بڑا مشہور حوالہ ہے قضات 15 باب میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم سمسون کی کہانی کو پڑھتے ہیں، ہم سمسون کی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ سمسون کے ساتھ کیا ہوا؟ 15 باب میں اگر اس کی پہلی آیت سے دیکھیں تو سمسون نے ایک عورت سے شادی کی، اور جب وہ واپس اپنی دلہن کو لینے گیا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کے سسر نے اس کی دلہن کسی اور سے بیاہ دی، اس کی بیوی کسی اور کو دے دی۔ اور یہ ایک ایسا عمل تھا کہ کوئی بھی انسان غصے سے پاگل ہو جائے، اور یقیناً سمسون کی بھی یہی حالت تھی، اور اسی حالت کے باعث سمسون نے اس پوری سلطنت، اس پوری قوم سے بدلہ ریونج لینے کا سوچا، ارادہ کر لیا، اور اس نے اس پوری قوم سے بدلہ لیا۔ لیکن خیر یاد رکھیں کہ یہ پرانے عہد نامے کی کہانی ہے، ہم نئے عہد کے دور ہیں جہاں معافی ہے، جہاں برکت اور سلامتی ہے۔ لیکن خیر ہم اس حوالے سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن جو چیز اس واقعے سے خاص سیکھنے والی ہے، جس بات پر خاص ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سمسون نے دشمن کی ٹیریٹری کو کس طرح برباد کر دیا، اور کس طرح دشمن کو شکست دی، اور کس طرح اس نے دشمن کا برملا تماشا بنایا۔ آپ جانتے ہیں سمسون نے کیا کیا؟ سمسون نے 300 لومڑیاں پکڑی۔ اب اس نے ان لومڑیوں سے کوئی کام لینا تھا، لیکن جو کام وہ لینا چاہتا تھا وہ اکیلی لومڑی کر نہیں سکتی، کیونکہ لومڑی کی ایک ہی دم ہوتی ہے۔ اس نے 2 دموں کو استعمال کیا۔ آپ سب جانتے ہیں، اس میں کوئی سیکرٹ کی بات نہیں، یہ بڑا مشہور حوالہ ہے۔ اس نے 2 لومڑیوں کی ٹیلز کو، دموں کو آپس میں جوڑا، اور ان دموں میں اس نے آگ لگا دی، اور اس کے بعد اس نے ایک بڑا سنگین عمل کیا، ایک بڑا دہشت کا کام کیا۔ اس نے دشمن کی سلطنت میں ان 300 لومڑیوں کے جوڑوں کو آگ لگا کر چھوڑ دیا۔ ان کے کھیتوں کے اندر، ان کی کھڑی فصلوں کے اندر، ایک بہت بڑے علاقے کے اندر۔ آپ میرے ساتھ رہیے، یہ بھید کی یہ مکاشفہ ہے روح القدس کا۔ اسے سنیں، اپنی زندگی پر اپلائی کریں، یہ آپ کے لیے باعث برکت و تبدیلی کا باعث بن جائے گا۔ دلیری کا روح۔ اب اس نے دشمن کی سلطنت میں ان 300 لومڑیوں کو چھوڑ دیا۔ وہاں کیا ہوا؟ ان کھیتوں میں شاید ان 300 سے کئی گنا زیادہ لومڑیاں پہلے بھی موجود تھیں، کھیتوں میں چھپی ہوئی تھیں، آلریڈی کھیتوں میں موجود تھیں، لیکن ان کی دموں میں آگ نہیں بھری ہوئی تھی۔ ان کی موجودگی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن فرق پڑتا تھا تو ان لومڑیوں کے وسیلہ سے جن کی دموں میں آگ بھری۔ سمسون کی بھیجی ہوئی لومڑی آگ کے وسیلہ سے سمسون کو دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جہاں جاتی سمسون کی نگاہیں ان پر تھیں، وہ مس نہیں، وہ اس کو دکھائی دے رہی تھی آگ والی لومڑیاں، اور وہ جہاں جاتی آگ لگاتی جاتی، ایک بڑا شور برپا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پینٹیکاسٹل خادم بڑا شور ڈالتے ہیں،
अरे भाई, जब रूहुल कुद्स होगा तो शोर से भर जाओगे। जो घरों के अंदर सुनोगे उसकी मुनादी कोठों के ऊपर होगी, छतों के ऊपर होगी, गलियों में और कूचों में होगी। इंसान ने लिखा है, हिकमत कूचों में पुकारती है। इब्तिदा में मैं खुदा के साथ थी, पढ़े इंसान को। हिकमत खामोश नहीं रहती। आप अक्सर पंजाब से ज्यादा बिलोंग करते हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि सुराही होती है, एक घड़ा होता है, एक सुराही की जरा गर्दन लंबी होती है, पानी वाली। आपने देखा होगा, आजकल के बच्चों को नहीं ये पता। तो उसमें जब पानी भरा हो ना, तो उसको जब उल्टा करें तो वो बड़े शोर से बोलती है, बड़ी तेजी से उसका पानी निकलता है, शोर के साथ निकलता है, क्योंकि वो भरी होती है। अगर वो खाली होगी तो आप पूरी सुराही भी उल्टी कर देंगे ना, तो एक छोटी सी शायद आवाज आए, एक कतरा गिरने की, टेप, इससे ज्यादा नहीं। वो लोमड़ियां जहां भी गई, समसून की निगाहें उन पर थी। और भी बेशुमार लोमड़ियां होंगी जो उस आग के वसीला इधर उधर भाग रही होंगी, लेकिन समसून उनको नहीं, वो अपनी लोमड़ियों को देखता और खुश होता था। और उनके वसीला से जो आग लगी, बड़ा शोर बरपा हुआ। उनके खेतों का, दुश्मन की फौजों का बरमला तमाशा बना। दुनिया निकल आई। आज एक घर में आग लगे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। इमेजिन करें, 300 लोमड़ियों ने कहां तक आग लगा दी। वो जहां से गुजरती, आग लगाती जाती थी। चले, ये तो पुराने अहदनामे का वाकया था। थोड़ा सा सीन को चेंज कर, जरा नए अहदनामे में आते हैं। लूका 12 बाब के अंदर मंजर को तब्दील करते हैं। हम नए अहद का एक और वाकया देखते हैं, लेकिन इस वाक्य के रूनुमा होने से पहले कोई रीजन थी। समसून ने दुश्मन के खेतों में आग लगाई, कोई रीजन थी, कोई वजह थी। यहां रीजन यह है कि मखलूकात अब तक उस मूसी के कब्जा में पड़ी हुई कराती हैं। गुनाह का फर्जंद और झूठ के बाप ने यसु मसीह की दुल्हन को गुनाह के हाथों बेच दिया है। और अब खुदा का बेटा आ गया है कि इब्लीस के और शैतान के कामों को मिटाए। रोमियो 7 बाब और 14 आयत में क्या पौलुस कहता है? मैं गुनाह के हाथों बिका हुआ। अजीजों, सिर्फ मसीही ही नहीं, गैर कौमें ही नहीं, हर वो शख्स जो मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं कबूल करता, वो कम बख्त और गुनाह के हाथों बिका हुआ। और याद रखें कि उसकी दुल्हन को कोई आजाद नहीं करा सकता। बड़े बड़े अंबिया आए, बड़े बड़े रसूल आए, बड़े बड़े आलम आए, बड़े बड़े बादशाह और सूरमा आए, वक्त के सुल्तानों ने कोशिश की, लेकिन इंसान को गुनाह की कैद से कोई रिहाई नहीं दे सका। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। सिर्फ उसी ने सलीब के वसीला दुश्मन का बरमला तमाशा बनाया, जैसा समसून की लोमड़ियों ने बनाया। लूका 12 बाब 49 आयत के अंदर यसु मसीह ने कहा, मैं जमीन पर आग भड़काने आया। और यहां वो रूहुल कुद्स की आग की बात करता है। रूहुल कुद्स की आग के बगैर हम कुछ भी नहीं। हम देखते हैं यसु मसीह ने 70 शागिर्दों को 2-2 करके भेजा।
उसने उन्हें खाली नहीं भेजा, उनको दो को मिलाया और उनको रूहुल कुद्स की आग से भरकर भेजा और उन्हें इख्तियार दिया, रूहुल कुद्स का इख्तियार, कि दुश्मन के खेत में, दुश्मन की टेरिटरी में, दुश्मन की सल्तनत में जाओ, बीमारियों को दूर करो, बदरूहों को निकालो, मुर्दों को जिंदा करो, मौजज़ात दिखाओ। उसने उन्हें इख्तियार बख्शा खुशखबरी फैलाने का और दुश्मन की सल्तनत में रूहुल कुद्स की आग के साथ भेज दिया, ताकि खौफजदा, कैद में महदूद इंसानियत मौत के साया की वादी से निकलकर खुदा के फर्जंद बनने का हक हासिल कर ले। अजीजों, आज आप जो सुन रहे हैं, क्या आपको भी खुदा ने भेजा है? या हम में से बहुत से महज उन लोमड़ियों की तरह जो सैमसोन की भेजी हुई लोमड़ियों से पहले खेतों में बगैर आग के मौजूद थी? याद रखें, खुदा ने हमें इख्तियार बख्शा है। अगर उसने इख्तियार बख्शा है तो उसका कलाम, ये भेद है, ये मुकाशफा है। याद रखें, अगर खुदा ने हमें इख्तियार बख्शा है तो उसका कलाम हमारे मुंह में उतना ही ताकतवर है जितना कि खुदा का कलाम खुद खुदा के मुंह में ताकतवर है, क्योंकि उसने अपना कलाम हमें दिया है। अगर उसने अपना कलाम हमारे मुंह में रखा है तो उसका कलाम फिर कभी बेतासीर नहीं लौटता। आज क्या वजह है कि हम खिदमत का वो इंपैक्ट नहीं देखते जो होना चाहिए? जब आप रूहुल कुद्स की तहरीक और रूहुल कुद्स की हदायत से बोलेंगे तो फिर बोलने वाले आप नहीं बल्कि खुद खुदा का रूह है और वो ताकतवर है। जब भी आपको कलाम या नबूवत या प्रस्तिश या बरकत के अल्फाज की तहरीक मिलेगी कि बोलो, प्रस्तिश करो, दुआ करो, कलाम सुनाओ, तो दुश्मन आपके साथ सरगोशियां करके आपकी हौसला शिकनी करने की कोशिश करेगा, आपको रोकने के लिए आपके अंदर शकूक और हदूद और रुकावटों को पैदा करेगा कि मत बोलना, मत बोलना। हो अगर तुमने मौजज़ात के लिए, बीमार के लिए दुआ की, मौजज़ा ना हुआ, बीमार अच्छा ना हुआ तो क्या होगा? अगर तुमने नबूवत कर दी और वो बात पूरी ना हुई तो क्या होगा? शर्मिंदगी होगी। मत बोलना अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? अगर बदरूहें ना निकली, अगर निजात का काम ना हुआ, क्या करोगे? जब आपको तहरीक मिलती है दुआ करने की, कलाम सुनाने की, तो बेशुमार मर्तबा ये सरगोशियां आपके कानों में आती। लेकिन ये वो वक्त होता है जब आप अबलीस को शर्मिंदा करें ना हो, अबलीस से कहें नेवर माइंड, कुछ भी हो जाए, अगर कुछ ना हुआ तो कोई मसला नहीं, अगर दुआ की मौजज़ा ना हुआ तो कोई बात नहीं, अगर निजात का काम ना हुआ तो कोई बात नहीं, मुर्दा जिंदा ना हुआ तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला है अगर खुदा की बात ना मानी, खुदा का हुक्म ना माना, रूहुल कुद्स की तहरीक की ताबेदारी ना की, तो मसला है। जब हम यस्सु के गवाह होंगे तभी शकूक, खौफ और इंसान के डर के फंदे और बंधन टूटेंगे और गिरहें खुलेंगी। कामिल के कलाम की कुदरत से हमें दलेरी, तभी हमारे अंदर से निकलने वाली यस्सु की गवाही को खुदा बाप कंफर्म करेगा। मौजज़ात और निजात के काम के वसीला से खुदा की कुदरत आपके साथ होगी। याद रखें, जब आप खुदा के लिए बोलने को निकलते हैं, खुदा के कलाम के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, आप अकेले नहीं हैं। मत सोचें कि आप अकेले हैं। अकेली लोमड़ी कुछ नहीं कर सकती। आप
खुदा के लिए फॉक्स बने, लोमड़ बच्चे ना बने। गजल की किताब में क्या लिखा है हमारे लिए? लोमड़ी बच्चों को पकड़ो जो खेतों को खराब। ईमान और खिदमत के खेत में हमें रूहुल कुद्स की आग की जरूरत है। आइए जरा वापस समसून के हवाले की तरफ चलते हैं। इमेजिन करें, तसव्वुर करें, चश्मे तसव्वुर से आप उस जगह जरा पहुंचे एक लम्हे के लिए कि अगर समसून ने बड़ी मेहनत की, 300 लोमड़ियां पकड़ना आसान काम नहीं था। लोग तो एक एक लोमड़ी पकड़ने के लिए कई कई घंटे फंदे लगाकर बैठते हैं। उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा। अगर उसने इतनी मेहनत की रात भर, फिर उनकी दुमों को भी बांधा, इतनी सख्त मेहनत करके हलकान होके थक के जब उसने दुश्मन के खेतों में लोमड़ियां छोड़ी तो वो आग लगाना भूल गया, तो क्या होता? फिर क्या होता अगर वो इतनी मेहनत के बाद 300 लोमड़ियां बांध के बगैर आग लगाए भेज देता? कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल कुछ ना होता, नतीजा सिफर होता। याद रखें, इसी तरह रूहुल कुद्स की मामूरी के बगैर ईमानदार कुछ नहीं कर सकता। वो महज ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ होगी और कुछ भी नहीं। रूहुल कुद्स की मामूरी, रूहुल कुद्स की आग के बगैर हम यस्सु के लिए कारामद नहीं, जैसे बगैर आग की लोमड़ियां समसून के लिए कारामद नहीं। आज बहुत से खादमीन बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं खुदा के खेत में, लेकिन नतीजा सिफर होता है। कलाम कहता है तुम्हारे लिए सवेरे उठना और मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है। अजीजों, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो बदलता नहीं, उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। उसके मुंह का कलाम ला तब्दील है और उसके मुंह का कलाम एमाल 1:8 आयत में भी है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम दलेरी पाओगे, तुम बोल्ड हो जाओगे, तुम्हारा खौफ जाता रहेगा, तुम्हारे शकूक जाते रहेंगे। ये उसके मुंह के अल्फाज हैं कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम्हारा डर दलेरी में बदल जाएगा। और इसी का सबूत हम फिल फौर एमाल 2 बाब में देखते हैं कि जो ही रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो वो पतरस जो खौफ के अंदर, जो डर के अंदर, जो एहसास कमतरी के अंदर, जो शर्मिंदगी के अंदर छुपता फिरता है, यीशु मसीह का इनकार करता है, लोंडी से डरता है, यीशु मसीह को लान तान करता है खौफ के बायस। अब वही पतरस जो कभी छुपता फिरता था, रूहुल कुद्स से भरकर उन्हीं सरदारों और फकीहों और फरीसियों को बड़ी दलेरी के साथ कहता है कि उस यीशु को तुमने मसलूब कर दिया। वक्त के सरदारों को वो कातिल कहता है उनके मुंह पर कि तुम यीशु मसीह के कातिल। ये दलेरी उसके अंदर कहां से आई? खौफ और दलेरी के दरमियान एक छोटा सा झूठ का पर्दा होता है। उस पर्दे को हटने की जरूरत है और वो पर्दा यीशु मसीह पर ईमान और रूहुल कुद्स के बगैर हट नहीं सकता। खौफजदा, डरे हुए पतरस को दलेरी में बदलने के लिए उस पर्दे का हटना जरूरी था। एक कहानी पुरानी, बहुत पुरानी, आपको भी याद होगी, मैंने सुनी है और बहुत मर्तबा मैंने सुनाई भी है कि एक किसान एक खेत के किनारे चलता जा रहा, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़े सांप ने
एक चूहे को हिप्नोटाइज किया हुआ है। अब चूहा उसको देख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल पत्थर का हो गया है, एक शहर के अंदर चला गया है, मौत उसके सामने है और उसको ये याद नहीं कि वो क्या करे, वो वो भाग सकता है और सांप स्लोली स्लोली बड़े आराम से उसकी जानिब बढ़ रहा है और चूहा उसको देखे, मौत को अपनी तरफ आते देखे जा रहा है, लेकिन मूव नहीं हो रहा क्योंकि उसको पैरालाइज, अपाहज कर दिया है खौफ ने और डर ने। अब किसान ने जब ये तमाशा देखा तो किसान के कंधे पर एक कपड़ा था, उसने फौरन से वो कपड़ा, जो ही चूहे के करीब वो सांप पहुंचा, जो ही उसको मुंह खोल के दबोचने वाला है, उसने उन दोनों के दरमियान कपड़ा डाला। कपड़े का बीच में आना था, वो शहर टूट गया और चूहा होश में आ गया और चूहा भाग गया। अजीजों, आज शैतान ने बहुत से लोगों को खौफ के बायस हिप्नोटाइज करके अपाहज और मफलूज कर दिया है, लेकिन खुदा का बेटा आ गया है कि इब्लीस के कामों को मिटाए और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का, उसके कफारे का इकरार करने के बायस मुमकिन है। इसके बाद खुदा आपके वसीला से रूहुल कुद्स की आग से भर के आपको दुश्मन की टेरिटरी में भेजेगा, वहां मौजज़ात, शिफा और निजात आपके मुंतज़िर है। खुदा आपके वसीले से नबूवतें और निजात के कलाम को करना चाहता है। और याद रखें, जब आप खुदा के खेत के लिए निकलेंगे, चाहे ऑनलाइन, चाहे अपने काम की जगह पर, जहां कहीं भी, आप याद रखें आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब यीशु मसीह आपके साथ है तो फिर रूहुल कुद्स की आग ऑटोमेटिकली आपके साथ है। तब आप दलेरी का रूह हासिल करेंगे और इंसान के खौफ से जो फंदा है, आजाद होकर उसकी निजात के काम को करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। थैंक यू। खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हैं हम सब कि पास्टर आसिफ एम सादिक साहब ने बहुत खूबसूरत पाकलाम हमारे साथ शेयर किया और यकीनन पाकरू की मामूरी हमारे दरमियान रही और खुदावंद की हजूरी हमारे साथ रही। हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत पाकलाम के लिए, जिसने हमारी जिंदगियों में एक दलेरी का बीज बोया ताकि हम आज़ादी के साथ, बुलंद आवाज के साथ, मुकम्मल दलेरी के साथ उसके पाकलाम को फैला सकें, उसके नाम को धन्यवाद कह सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें और जहां तक हमारी वुसअत है उसको बढ़ा सकें और खुदावंद के हजूर झुके रहें और उसके नाम को दलेरी से पुकारें ताकि दुनिया जाने कि खुदा ही खुदावंद है, वही हमारा खुदा है और वही जिंदा खुदा है, वही माबूदों का माबूद है, वही कुल कायनात का खालिक और मालिक है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। पास्टर साहब, बेहद शुक्रगुजार हैं हम आपके इस खूबसूरत पाकलाम के लिए, जिसके वसीला से हमने बड़ी बरकत पाई और कसरत से बरकत पाई। खुदावंद आपके साथ हो, तमाम हाजरीन के साथ हो, तमाम लोग जो जूम मीटिंग में हमारे साथ शामिल हैं। अभी हम एक छोटा सा कोर्स हमाद बेली भाई के साथ गाएंगे, सुनेंगे और बरकत पाएंगे। एक छोटा सा शुक्रगुजारी के लिए कि उसने हमें अपने पाकलाम का भेद दिया, हमारी रूहों को तरोताजा कर दिया, हमारे अंदर जोश भर दिया, ताकि हम खुदा के नाम को पूरे तौर पर फैला सकें। और जो इस वक्त परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, कोरोना है या कोरोना जैसी वबाएं हैं,
मौसम की शिद्दत है, खुदावन ने हमें दलेरी दी है कि हम उसके नाम को जलाल दें। जो हमारा मकसद है, हम उसकी तरफ कायम रहें। जी हमाद बेली साहब प्लीज। बहुत बरकत मिली कलाम सुनकर। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी फॉर द वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड। और यकीनन हमें बड़ी दिलेरी की ज़रूरत है कि खुदा उनका कलाम दिलेरी से सुनाएं। बड़े अच्छे लगे हवाला जात भी और बड़ी खूबसूरत बातें। मेरा ज़बूर गाने को एक दिल कर रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़बूर मिलके गाते हैं हम लोग। एक ज़बूर 20 है। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। आता है सबको? या ज़बूर 40 है ये। ज़बूर 40 जी जी। मैं सॉरी अगर गलत कह गया मैं। आपके पास लफ्ज़ हैं इसके? जी जी यहाँ पे लगा सकते हैं आप? चले मेरे पास आ गया। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। कदों उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो सारी। ओ खतरे दे टोए देखो बयां चों है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोए देखो बयां चों है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। शैतानू ते रखे पैरे मेरे ते बख्शे कदमानू उस्तवारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। खुदा ने गीत के नवा सिखाया ते जिस तो होवे तारीफ उसकी। खुदा ने गीत के नवा सिखाया ते जिस तो होवे तारीफ उसकी। बथेरे मनण के खौफ उसदा ते आस रखणगे प्रभु ते सारी। ये जरूर आज पूरी होगी, पूरी दुनिया मानेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है। मुबारकों से हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसका। मुबारकों से हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसका। घमंडियां को बड़ी खूबसूरत बात है, खुदा उनको घमंडी नहीं पसंद। इनके सारी घमंडियां कोल ओ ना चांदा ना झूठे नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के
यहोवा दी करदा सा इंतजारी कदों से मेरे ते कैसे खाके सुनी मेरी सारी आहो सारी। बहुत बहुत खूबसूरत ज़बूर हैं। खुदा उनका शुक्र हो, मुझे बहुत सारे आते खुदा हैं, उनका इसलिए शुक्र। मौका मिला और ज़बूर गाएंगे हम किसी और दिन। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच हमाद बेली साहब, थैंक यू सो मच। अब हम अपनी मुनाजात और दरख्वास्तें अपने जिंदा खुदा के हजूर रखेंगे और पास्टर आसिफ एम सादिक साहब से गुजारिश होगी कि मुनाजात सुनकर तो वो हमारे दुआ में हादी होंगे। अब ये वक्त है कि तमाम साथी जो इस जूम मीटिंग में शामिल हैं वो अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। अपनी दरख्वास्तें और अपनी मुनाजात खुदा उनके हजूर रखें ताकि पास्टर साहब हमारे लिए दुआ करें। जी, गुड इवनिंग पास्टर जी, मैं जर्मनी से नेहा की मामा बोल रही हूँ। गुड इवनिंग। तो पास्टर आसिफ आप प्लीज हमारे लिए दुआ राइट, करें कि हमने पहले जी जी जरूर। पहले जो एक वकील रखा था तो वो कोई इतना अच्छा नहीं था, हमें अभी पेपर नहीं मिले जर्मनी के, तो अभी नया हमने वकील हायर की है, फीमेल है, तो प्लीज उसको खुदावंद के हाथों में दे कि वो हिकमत और दनाई के साथ हमारे केस को लड़े और खुदावंद की हुजूरी से हमें पेपर सादर हो। थैंक यू पास्टर जी। जी, कोई और दरख्वास्त? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं मुकद्दस बात कर रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान से। मेरी पे रिक्वेस्ट है कि खुदा मुझे एक अच्छी जॉब दे, मॉर्निंग टू इवनिंग। तो मैं खुदा के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, खुदा मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। तो उसके अलावा प्रे फॉर माई स्टडी, मे गॉड मेक मी सक्सेसफुल एंड प्रे फॉर माई फैमिली। ओके, राइट। हाँ जी सर, सर मैं वर्शिपर अनिल जावेद हूँ सर। सॉरी सर। जी जी अनिल, सब बताएं। जी सर, मैं अनिल जावेद हूँ सर, पाकिस्तान पेशावर से। तो सर मेरे लिए सर प्रे करनी है सर, इस मकसद के लिए सर मैं एक सर वर्शिपर हूँ। तो सर मैंने एक जादू पीरों पे सर एक गीत बनाया है अपना सर। तो सर जब से मैंने सर वो गीत लिखा सर, मैं उस दिन से सर मैं ठीक नहीं हूँ सर, बीमार हूँ। तो जरूर सर मेरे लिए इस बारे में सर प्रे करनी है। राइट, थैंक यू सर। खुदावंद आपको आज़ाद करे। आमीन। जी, कोई और दरख्वास्त? मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर जी, आई हैव स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान जो कि जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो वो मेरे से सीख रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल हो गया। 3 स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छा बजाते हैं, गिटार भी और गाते भी हैं। मसीह के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की है। उनके वालिद साहब को फॉलेज का अटैक हुआ है कल से, तो प्लीज़ डू प्रे फॉर हिम। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट खुदावंद जानता है, बस उनके वालिद साहब के लिए दुआ कीजिए। थैंक यू। जी सब कुछ चैट्स में प्रे रिक्वेस्ट है, प्लीज वो भी पढ़ लीजिएगा। राइट। जी अभी भाई विल्सन यूनस आपने क्या बोला है, एक और किसके लिए, किस चर्च के लिए है? कह रहे हैं रिक्वेस्ट कुछ टेक्स्ट में भी आई हैं, वो भी आप मैसेजेस देख सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट में आपने कहा है? जी जी। टेक्स्ट में मुझे अभी तक तो कोई नहीं, सिर्फ मुकद्दस नजीर साहब की नजर आ रही है रिक्वेस्ट, राइट, जो ऑलरेडी मैंने नोट कर ली है जी। और कुछ राइट। अगर है तो ठीक, अदरवाइज खुदा बेहतर जानता है। जी भाई अमाद बेली। भाई साहब, एक मिस्टर शकील हैं कराची में, उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा है, नीचे के बेस डाउन वो पैरालाइज्ड है, उनके लिए दुआ करें। कराची में है वो, शकील इनायत नाम है उनका। ठीक है, प्रॉब्लम है। राइट। मुनीर नाम है जी उनका, उनके वालिद साहब का।
पास्टर जी मैं एक दूसरी रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मेरी एक सिस्टर लाए, तो उनके हस्बैंड जो है ना वो उनको प्रेयर करने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब वो फील करते हैं, प्रेयर भी नहीं करने देते, गालियाँ बहुत देते हैं, तो इवल स्पिरिट है। तो ये है कि वो ज़्यादातर दुआ पे बिलीव नहीं करते, वो ज़्यादातर जो जादू टूने हैं उन पे बिलीव करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। सुबह वो मेरे साथ मैंने उसके साथ प्रेयर की थी और वो रो भी रही थी, तो कह रही थी ये खुदावंद की तरफ से मर्जी है कि आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा जी उनका नाम एलिज़ाबेथ है। तो प्लीज उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उनके अंदर काम करे। और बेटी कहती है कि मेरी जो यानी कि कजन है वो नंद है, वो कहती है मैं बहुत सफर कर चुकी हूँ, तो प्लीज आज मेरे लिए खास तौर पर दुआ करवाएं कि खुदावंद मुझे इस सारे चीजों से हमारे घर में खुशहाली आए और खुदावंद का रूह काम करे। थैंक यू पास्टर जी। जी मेरे ख्याल में और कुछ नहीं है तो पास्टर सॉरी एक और रिक्वेस्ट है। मेरे भाई है परवेज उल्बर, तो उनका हार्ट एनलार्ज हो चुका है, कुछ शुगर परवेज बट इधर ही है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, शुगर का प्रॉब्लम से, तो ब्लड प्रेशर का। उनका लीवर एनलार्ज हो चुका है या नहीं, उनका हार्ट थोड़ा सा कार्डियोमेगैली हुई है थोड़ी सी। आइए हम सब इस ईमान के साथ कि खुदावंद ने हमें इख्तियार बख्शा है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और खुदा का बेटा इसीलिए आया कि हमें आजाद करे। उसका जुआ उठाते हुए हम हमेशा बड़े बोझों से आजाद होकर आराम पाते हैं। आइए ईमान के साथ हम सब मुत्तफिक होंगे, जब मिलकर दुआ करेंगे तो यीशु मसीह का नाम जलाल पाएगा, क्योंकि शिफा देने वाला कोई इंसान, कोई खादम नहीं है, ये खुदा का रूह है, और यीशु मसीह के नाम के वसीला से शिफा आती है। लेट अस प्रे। Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. We give you honor, Lord. We thank you, Lord. We give you honor. We thank you for your unconditional love through your Son, Jesus Christ, whom you sent for our sins on the cross, and through him we became the heirs of eternal life. Lord, we thank you for your unconditional love that you have engraved us on your palms, Lord. We thank you. Empower us to proclaim the truth of gospel through the blood of Jesus. Hallelujah. Rigara safa baboro shandara diala kara sataro babaras yanando shokolo barasya. Hallelujah, hallelujah. हमारे नहायत ही मेहरबान बुजुर्ग जलाली वफादार लातब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश, तेरी मदद सराय, हम तेरी जय जयकार करते हुए तेरे मज़बा के सामने हम सब आते, जमीन तक झुक कर तुझे सिजदा करते मुबारक कहते हैं। पाक खुदा आसमानी पिता इकरार करते हैं कि अपनी ही साथ में हम खाक और राख हैं, लेकिन जो कुछ भी है तेरे फजल से है, और आज तेरे फजल का सहारा लेकर तेरे हजूर में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में तेरे आला इलाही उत्तम अख्तियार को लेते हुए इन तमाम दरख्वास्तों को तेरी हजूरी में याद करते हैं। खुदा बखूर की मानिंद इन दरख्वास्तों की मुनाजात को तेरे मज़बा के सामने पहुंचाते हैं। तू जो के हल्ले मुश्किलात है, तू जो के साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है, तेरी तमाम राहों से रोगन टपकता है, तेरे मुंह के अल्फाज शहद के टपकों से ज्यादा शीरीनी, और खुदा तेरी हिकमत खालिस सोने से ज्यादा पायदार और कीमती है। और खुदा हम यस्सु के नाम में तेरे बेटे यस्सु के लहू को अपनी जिंदगियों पर लेते हैं। खुदा हम जानते हैं कि तेरे बेटे यस्सु ने जब सलीब पर अपनी जान दी, जब उसके बदन पर कोड़े बहाए जा रहे थे, तो उन कोड़ों के साथ पैदा होने वाली रेखारियों के अंदर हमारे गुनाह, हमारी कमजोरियां, हमारी कोताहियां, हमारी बीमारियां, नाकामियां, सब कुछ पिरो दिया गया, और अब यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सब मुत्तफिक होते हैं भाई विल्सन और उनकी फैमिली के लिए,
और खुदा हम सब मुत्तफिक होकर उस लॉयर को, उस वकील को, उस सॉलिसिटर को, वो जहां कहीं भी है तेरी हजूरी में याद करते हैं, तेरा रूहुल कुद्स उस बंदी को छू जाए, उसके अंदर तेरी हिकमत काम करे, और खुदा सारे पेपर वर्क के अंदर तेरे रूहुल कुद्स की मर्जी के वसीला से खुदा कामयाबी नसीब हो। तू जो कि हल्ले मुश्किलात और मोजज़ात का खुदा है, हम तुझसे ये मोजज़ा चाहते हैं। भाई मरकस नजीर की दुआ को खुदा, जॉब को दुआ में रखते हैं खुदा, वो जो कि तेरा बंदा तेरी खिदमत के लिए अपने वक्त को मुहैया करना चाहता है, तुझसे एक अच्छी जॉब सुबह से शाम तक दे, ताकि शाम के बाद उसके पास मुनासिब वक्त हो। गो के सारे वक्त तेरे हैं, लेकिन तू उसको जराए मुहैया कर खुदा। तेरे खादम प्रस्तार भाई हमाद बैली के लिए खुदा तेरी हजूरी में मुल्तजी है, वो जो कि खुदा लंदन की स्ट्रीट्स में और मुख्तलिफ चर्चों में इवेंजलिज्म करता है यस्सु के नाम में। खुदा अपने बंदा को और ज्यादा कुव्वत, हिकमत, मुकाशफा और ब्लेसिंग दे के जब वो तेरा कलाम बयान करे और तेरे कलाम की मुनादी प्रस्तिश के वसीला से करे, तो लोग जाने यस्सु मसीह जिंदा और निजात दहिंदा है। इसी तरह उनके फ्रेंड को लाहौर में जहां कहीं भी भाई मुनीर है, उनकी सारी बीमारी, प्रॉब्लम और सारी खुदा परेशानियों को तेरे मज़बा के सामने याद करते और तुझसे खुदा शिफा और रिहाई और बहाली को चाहते हैं। खुदा तेरे खादम भाई अनील जावेद को मैं मज़बा पर तेरे हुजूर में लेकर आता। वो तेरा खादिम है, वो तेरा परस्तार है, उसने खुदा अपनी जिंदगी तुझे दी है, वो तारीकियों से निकला, तूने उसको घूरे से उठाया और खुदा तूने अपने नाम के जलाल के लिए उसे इस्तेमाल किया। अब जबकि वो अबलीस के साथ मैदान जंग में है, तो खुदा हम जानते हैं कि वो अकेला नहीं, बल्कि तेरा रूहुल कुद्स उसके साथ है। उसकी सारी मुसीबतों से, उसे बंधनों से रिहाई दे, ताकि तेरा बेटा यस्सु मसीह उसकी जिंदगी में जलाल पाए और एक गवाही कायम हो। हाँ खुदा मिसिस शकील अनायत को याद करते हैं। खुदा वो इस वक्त जहां कहीं भी है, तेरा रूहुल कुद्स उसको छू जाए और खुदा उनकी जो भी खुदा सकते की या पैरालाइज होने की हालत है, और खुदा यस्सु के नाम में उनको मूवमेंट के अंदर दोबारा बहाल करके कि तेरा लहू जिंदगी है। जब तेरा लहू मांगा जाता है तो खुदा वो पुरतासीर है, वो काम करता है और उसके सामने कोई रुकावट, कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। और तू कल आज पल की अब तक यकसा है। जो मोजज़ात तू 2000 वर्ष पेशतर करता था, आज भी अपने रूहुल कुद्स के वसीले करता है। और तेरे यहाँ ज़मानो मकान की कोई कैद नहीं, तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। यस्सु के नाम में हम तेरा कलाम जारी करते हैं, जो तेरे लोगों के चेहरों की रौनक, उनकी नाफ की सेहत और हड्डियों की ताजगी बन जाता है। और खुदा बहन मिसिस विल्सन के लिए खुदा उनकी फ्रेंड जो है, उनकी जो मदर इन लॉ है एलिजाबेथ, उनको तेरी हजूरी में याद करते हैं और तेरे रूहुल कुद्स के मसा और कुदरत को जारी करते हैं कि अभी जिस वक्त जहां कहीं भी वो मौजूद है, तेरा रूहुल कुद्स उसको आजाद करे और उसकी जिंदगी में मोजज़ा हो। यस्सु के नाम में खुदा भाई परवेज भट्ट को तेरी हजूरी में तेरे मज़बा के सामने याद करते हैं। उसका जो हार्ट एनलार्ज हो चुका है, खुदा तू दिल में रहता है, वो दिल तेरा हो जाए और खुदा तेरा मस्कन बन जाए और वो दिल एक मौजज़ा और गवाही बने कि यस्सु मसीह मौजज़ा करता है, वो जिंदा है और वो जिंदा को जिंदा रखता है और हमेशा की जिंदगी में शामिल करता है। इसी तौर से खुदा और बेशुमार दरख्वास्तें हैं जो इस मज़बा पर तो नहीं, लेकिन शायद कुछ लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, जान रहे हैं। तू सबके दिलों को जानता है, तू खुदा हर एक चीज से वाकिफ है। तू हमारे ख्यालात की और ख्वाबगाह की छानबीन करता है। वो ख्यालात जो हमारे ख्यालात में भी नहीं आते, तू उनको पहले से जानता। और खुदा हमारी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू पूरे तौर पर ना जानता हो। यस्सु के नाम में इन तमाम लोगों की चाहे कोई परेशानी, बीमारी, दुख, तकलीफ है, किसी के खुदा माली प्रॉब्लम है और खुदा जॉब की प्रॉब्लम है, पढ़ाई की प्रॉब्लम है, खानदानी इश्यूज है, यस्सु के नाम में खुदा हम ईमान के साथ उस कादिर नाम में जो सब नामों से आला और उत्तम है, जिस नाम के वसीला से हर एक जुबान इकरार करेगी कि वही खुदा जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, वो नाम जो सब नामों से आला है, उस नाम के वसीला से हम शिफा को, बहाली को, रिहाई को, कुदरत को, मौजज़ात को जारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। हम छुपे, तू दिखे,
फक्त और फक्त यीशु का नाम जलाल पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र, आमीन। खुदावंद का शुक्र। हमारा ईमान है कि खुदावंद से मांगे तो वो अता फरमाता है, खुदावंद से इल्तिजा करें तो वो पूरी करता है। खुदावंद तेरा शुक्र। अब वक्त क्योंकि बिल्कुल थोड़ा रह गया है, तो हम पास्टर साहब से गुजारिश करेंगे, पास्टर आसिफ से, कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें, इख्तितामी दुआ और दुआए रुबानी और बरकत के कलमात से इस जमात को, ऑनलाइन जमात को रुखसत करें। ये अपने सर को एक बार फिर झुकाएं, और जब हम दुआए रुबानी कहेंगे तो तब अगर आप अनम्यूट करके शामिल हो सके तो दैट्स वेरी गुड। तो आइए शुक्रगुजारी की एक छोटी सी दुआ करें। हमारे नहायत ही मेहरबान बुजुर्ग जलाली वफादार ला तब्दील आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी बरकत के लिए, तेरे रूहुल कुद्स के रोक, कंट्रोल और दबदबा के लिए कि तूने सारी टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखा और खुदा अपने नाम को जला दिया। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना, इस कलाम को आगे लेकर जाए, ये फलदार हो और खुदा तेरी मर्जी के मुआफिक फल लाए, और फिर मिल बैठने के फजल को अभी से रूहुल कुद्स की गहरी कुदरत में हम जारी कर देते हैं। सारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब कभी तुम दुआ करो तो यूं कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर मैं रोज की आज में बरसे, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तू बदल चला हमेशा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाई जुल जलाल की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हम सबों के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ यीशु मसीह की आमद सानी तक होती है।